So, hello everyone. I hope you all are doing well in this pandemic situation of COVID. है ना? So let us start today's topic. That is law of conservation of linear momentum. ठीक है? See, there is also a topic which is known as law of conservation of angular momentum, but presently that is not in our syllabus. So we are going to study about the linear momentum. ठीक है ना? Now, what is the definition? What this law says? In a simple definition, I must say, it simply says the momentum before collision is equals to momentum after collision. ठीक है? अब वर्ड में क्या है बेटा? देखो, in an absence of external force, the total momentum before and after the collision remains same. ठीक, ये चीज याद रखना है. इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स मतलब बाहर से आप कोई भी फोर्स उसमें अप्लाई नहीं कर रहे हो. ठीक है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस राइट डाउन द डेफिनेशन. बहुत अच्छा डेफिनेशन है. इन एन एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स, याद रखना है एक्सटर्नल फोर्स के एब्सेंस में, when two or more bodies interact with one another, their total linear momentum remains constant. The total linear momentum remains constant. Or in simple word we can say that momentum before collision is equals to momentum after collision. Momentum before collision is equal to collision का स्पेलिंग गलत हो गया क्या? COLLISION. collision is equals to momentum after collision. ठीक है. अब जरा सा देख लीजिए डायग्राम. लेट अस से देयर आर टू बॉडीज मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटीज u1 and u2. The mass of first body is m1, mass of another body is m2. ये क्या हुआ? बिफोर कोलिजन. ठीक है. ये बॉडी ऐसे कोलाइड किया आपस में, उसके बाद ये क्या हुए? सेपरेट हुए. ठीक है ना. एंड नाउ बॉडी with mass m1 is moving, let us name it a b for ease of simplicity, है ना. The body A is moving with velocity v1 and body B is moving with velocity v2. So according to definition, what is the momentum before collision? m1 u1 plus m2 u2 is equals to momentum after collision m1 v1 plus m2 v2. ठीक है. ये सिंपल सा इसका क्या है? डेफिनेशन है. अगर डेफिनेशन पूछा तो यहाँ तक लिखना है. उसके बाद क्या करना है अपने? डेरिवेशन. अगर पूछा एग्जाम में, सो इट्स डेरिवेशन इज समथिंग. देखो, फोर्स जब कोलाइड किया ऑब्जेक्ट ए स्ट्राइक किया ऑब्जेक्ट बी को, देन व्हाट इज द फोर्स एक्सर्टेड बाय ऑब्जेक्ट ए ऑन बी? फोर्स एक्सर्टेड, ये अप्लाइड बाय ए ऑन बी. ठीक है. कुछ फोर्स लगाया, उस फोर्स की वजह से इसकी क्या हुई? वेलोसिटी
चेंज हुआ. फोर्स इज नथिंग बट मास मल्टीप्लाइड बाय एक्सेलरेशन, एंड एक्सेलरेशन वी कैन राइट एक्सेलरेशन एज चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम. ठीक. सो अब बी पे फोर्स लग रहा है, ठीक है, जिसकी वजह से क्या हुआ, उसका वेलोसिटी चेंज हुआ. तो कितना फोर्स लगा, दैट इज मास ऑफ ऑब्जेक्ट 2, दैट इज मास ऑफ बी मल्टीप्लाइड बाय चेंज इन वेलोसिटी. ठीक है, फाइनल माइनस इनिशियल, सो इट इज v2 माइनस u2 डिवाइडेड बाय जितने समय के लिए फोर्स लगा, फॉर लेट अस से फॉर अ वेरी स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम del t, and let us write this as F1. ठीक है ना. What is this force exerted by body A on B? A जब कोलाइड किया, A B जब आपस में इंटरेक्ट किए, तो A B पे कितना फोर्स लगाया, that is simply mass of object 2. Force is nothing but mass multiplied by change in mass multiplied by acceleration, and acceleration can be written as change in velocity divided by time. तो कितना वेलोसिटी में चेंज हुआ, v2 माइनस u2 divided by del t. ठीक है ना. Now second, that is force exerted या applied, जो भी लिख लीजिए, force applied by B on A. अगर A B पे लगाएगा तो B भी A पे लगाएगा, और वो कितना लगाएगा, that is m1 multiplied by change in velocity, that is v1 minus u1 divided by del t. Let us say it as f2. ठीक है. अब अपने को मालूम है कि फ्रॉम न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, कहां से, फ्रॉम थर्ड, या इसको कंप्लीट लिखते हैं, फ्रॉम न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन. What it says that for every action there is equal and opposite reaction. तो एक्शन मान लीजिए ये था F1, तो रिएक्शन क्या हुआ आपका F2. A अगर B पे लगाया तो B भी A पे लगाएगा, तो ये क्या हो गया इसका रिएक्शन. रख दीजिए वैल्यू, दिस इज m2 v2 माइनस u2 डिवाइडेड बाई del t इक्वल्स टू माइनस टाइम्स ऑफ m1 v1 minus u1 divided by del t cancelled out. Open it. m2 v2 minus m2 u2 equals to minus times of m1 v1 plus m1 u1. नेगेटिव साइन इधर ले आइए, ये नेगेटिव वाला को उधर ले जाइए, तो क्या आया आपका m1 v1 प्लस m2 v2 इक्वल्स टू m1 u1 प्लस m2 u2. आ गया आपका फॉर्मूला, डेरिवेशन हो गया, प्रूफ भी हो गया. यही इसका प्रूफ था, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम का. ठीक है, ये क्या है आपका, मोमेंटम बिफोर कोलिजन इक्वल्स टू मोमेंटम आफ्टर कोलिजन. वेरी सिंपल. इफ यू वांट यू मे नोट इट डाउन, बट डू इट फास्ट. Now let us do some applications, है ना. लॉ तो समझ आ गया, डेरिवेशन समझ आ गया, अब इसके एप्लीकेशंस में चलते हैं. बहुत सिंपल एप्लीकेशन. ओहो, ये पेन तो मिटेगा ही नहीं. एप्लीकेशंस. फर्स्ट, रिकॉइल ऑफ गन. रिकॉइल ऑफ गन. देखो हम लोग मूवी में हमेशा देखते हैं, ठीक है, अच्छी मूवीज में, कि जब भी फायर करना है या फिर जब भी कोई लर्नर है जो सीख रहा है बंदूक को फायर करता है, तो पीछे की ओर गिर जाता है या फेंका जाता है. व्हाई दिस हैपेंस? ऐसा क्यों होता है बेटा? जैसे गन से, उसके बैरल से बुलेट बाहर जाता है, वो एक पीछे की ओर फोर्स अप्लाई करता है. एक्शन हुआ आगे, रिएक्शन मिला पीछे. ठीक है ना. इसमें भी क्या होगा, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम होगा. ठीक है, इसी वजह से क्या होता है, उसको एक बैकवर्ड फोर्स उस आदमी पे आता है.
दैट्स वाई वी हैव सीन दैट द पर्सन विच इज होल्डिंग द गन होल्ड इट्स वेरी टाइट। ऐसा नहीं हिंदी मूवी जैसा ऐसा सब फायर कर रहे हैं, ठीक है, एकदम अगर एक्चुअल में देखोगे तो बंदूक को जो होल्ड करके रखते हैं एकदम टाइटली होल्ड करके रखना है और हल्का सा उसको जर्क भी महसूस होना है पीछे की ओर, ठीक। वैसे ही जब हैवी व्हीकल गन्स में जब जाते हैं हम लोग, समथिंग लाइक अ हैंडी मिसाइल है ना, तो उसको कहाँ रखा जाता है, सिर्फ शोल्डर पे रखा जाता है। और अगर आप और हम अगर इस चीज़ को ट्राई करने जाएंगे तो हमारा शोल्डर ब्रेक हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जब मिसाइल्स लीव करना है, ठीक है, तो बहुत ज़्यादा फोर्स अप्लाई करना है। जैसे हल्के फुल्के आदमी के लिए नहीं रखना है, ठीक है। दिस ऑल आर फॉर ट्रेंड पर्सन। ऐसा नहीं आप ऐसा मिसाइल का जो डिब्बा लेके गया मूवी में दिखा रहा है मिसाइल जा रहा है फिजिक्स के ऐसी की तैसी ऐसा नहीं रखना है। आप अगर कारगिल वॉर का भी वीडियो देखोगे तो देखोगे जो बैरल्स रहते हैं मिसाइल्स वाले, ठीक है, एंटी टैंक, वो हल्का सा जर्क पड़ता है उसको पीछे की ओर। दिस ऑल आर बिकॉज ऑफ न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। और वहाँ भी हम लोग देखते हैं कि क्या होता है, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंट, ठीक। इसमें सबसे पहला आता है आपका रिकॉइल ऑफ गन। Let us say the mass of the bullet which is leaving the gun, ऐसा उतना अच्छा डायग्राम नहीं है, is m and the mass of the gun is capital M. The velocity by which the this bullet is leaving है ना is small v और ये capital V, ठीक है ना। अब इसका डेरिवेशन सिंपल है, बहुत ही सिंपल। We know that from थर्ड लॉ, ठीक है ना, फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो क्या हुआ, एम वी इज इक्वल्स टू कैपिटल एम मल्टीप्लाइड बाई कैपिटल वी। या फिर ये भी कर सकते हो नेट फोर्स एक्टिंग इज जीरो, तो आप ये भी ले सकते हो आगे के मूवमेंट को पॉजिटिव लिए तो एम वी और जो पीछे मूव हो रहा है उसको नेगेटिव लिए ये कैपिटल वी इक्वल्स टू जीरो। कोई भी इक्वेशन सॉल्व चालू कर सकते हो। इसमें क्या लिया हम लोगों ने, नेट फोर्स कितना होगा, ऑब्वियस सी बात है जीरो होगा, ठीक है, क्योंकि एक्सटर्नल कोई फोर्स अप्लाई नहीं कर रहा है। जो बुलेट नोजल को लीव किया उसी ने क्या किया, एक पीछे की ओर फोर्स अप्लाई किया, तो नेट फोर्स कितना हो गया आपका जीरो, ठीक है। तो स्मॉल एम वी माइनस कैपिटल एम वी इक्वल जीरो। या फिर यहां से ले सकते हो फ्रॉम न्यूटन क्या बोलते हैं, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ इक्वेशन, ठीक है ना। स्मॉल एम वी इक्वल्स, अच्छा ये माइनस टाइम से रहेगा नेट फोर्स, हाँ नेट फोर्स जीरो तो अपने को नहीं मालूम बेटा। हाँ यहाँ पे देखिए दोनों में थोड़ा सा चेंजेस है ना, समझिएगा अच्छे से कि अपने को नहीं मालूम कि पीछे मूव कर रहा है कि नहीं। तो हम लोग क्या किए, नेट फोर्स इक्वल्स जीरो में क्या लिए, एम वी प्लस कैपिटल एम वी इक्वल्स जीरो, ठीक है ना। ये हम लोगों ने कहाँ से लिया, नेट फोर्स इक्वल्स जीरो, कौन पीछे मूव कर रहा है अपने को नहीं मालूम, फिर क्या हुआ एम वी प्लस कैपिटल एम वी इक्वल्स टू जीरो। यहीं से सॉल्व कर लेते हैं, ईजी पड़ेगा, ठीक। तो यहाँ से क्या आया, m multiplied by v equals to minus times of small mv और capital V equals to minus times of small mv divided by capital M। ये वेलोसिटी क्या है आपका, नेगेटिव आया, इट मीन्स दिस गन विल मूव इन बैकवर्ड डायरेक्शन। ये है सिंपल सा एप्लीकेशन। दूसरा एप्लीकेशन जो है इसका ये है पेंडुलम वाला, ठीक है, बॉल्स का है। that is collision of balls, collision of balls। इसमें देखो ये ऐसा हमारा फिक्स है, ठीक, इससे हम लोग मल्टीपल बॉल्स को हैंग कर दिए हैं और सब आपस में कैसा है, इन कांटेक्ट। नाउ इफ यू आर गोइंग टू टेक वन बॉल, ठीक है, ऐसे आपने एक बॉल लिया और उसको लीव किया, ये क्या करेगा, यहाँ स्ट्राइक करेगा, तो यहां से भी कितना बॉल निकलेगा, ओनली वन। सभी बॉल का मास क्या है, इक्वल है, ठीक। अब मोमेंटम को कंजर्व करना है, m मल्टीप्लाइड बाई वी, तो यहाँ भी क्या आना चाहिए, m मल्टीप्लाइड बाई वी। जिस वेलोसिटी से ये बॉल इसको स्ट्राइक करेगा उसी वेलोसिटी से बॉल यहाँ से लीव करेगा। इसमें ये आपका लैब का एक्सपेरिमेंट भी है। इसमें मान लीजिए आपने इन प्लेस ऑफ वन बॉल इफ वी हैव टेकन टू बॉल्स, then we can observe that to conserve the momentum, ठीक, if these two balls are striking then from this point two balls will leave with same velocity। जिस वेलोसिटी से यहाँ स्ट्राइक करेगा उसी वेलोसिटी से यहाँ भी दो बॉल लीव करेगा, ठीक।
दिस इज द सेकेंड एप्लीकेशन. थर्ड एप्लीकेशन इज एक्सप्लोजन ऑफ बम. वी हैव सीन. ठीक है, अब क्या है बेटा, देखो बम रखा हुआ है, उसमें आपने एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाया, वो इंटरनली एक्सप्लोड किया. अगर एक्सप्लोड करेगा देन वी विल सी दैट द पार्टिकल्स विच आर लिविंग द बम लीव्स इन ऑल द डायरेक्शन. सभी डायरेक्शन में वो लीव करेगा. एक डायरेक्शन में ही लीव किया तो कंजर्वेशन मोमेंटम आएगा? नहीं आएगा. ठीक है, वो कैसा लीव करना है? इन ऑल द डायरेक्शन. दैट्स वाई अगर आप ध्यान दीजिएगा, हिरोशिमा एंड साकीनाका करके जो था, वहां पे न्यूक्लियर बम जो ड्रॉप किया गया था, ठीक है, तो जो उसका एक्सप्लोजन होता है वो रेडियस में बताया जाता है, इतने रेडियस तक वो फैला. ठीक है, ये नहीं बोला है कि हमने ऐसा स्ट्राइक किया मिसाइल को और ये सामने के एरिया को डिस्ट्रॉय करेगा. नहीं, जहां स्ट्राइक करेगा तो एक सर्टेन रेडियस को क्या करेगा? वो कवर अप करना है. ठीक है, दिस इज अगेन अ एप्लीकेशन ऑफ और एन एग्जाम्पल ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम. सो दिस टॉपिक ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, ठीक है, छोटे से टॉपिक ये हो गया. नाउ वी विल गो ऑन द नेक्स्ट, दैट इज, हाँ इसी में एक और एप्लीकेशन वो भी बता देता हूँ, रॉकेट propulsion. ओके, लेट अस कंक्लूड दिस क्लास एट दिस पॉइंट, है ना बेटा. फॉर रॉकेट propulsion आई विल मेक अनदर वीडियो just after it and I will number it. ठीक है ना, so you will not find any difficulty in getting that as I am having some urgent work at this point. ठीक है, thank you.